Now here you can see the table. Yes, you can see the table now. Yes, ma'am. Yes. So in this table already color changes with the object or with the system are mentioned. Okay. Okay, beta, please be quiet. Let me speak. So, Abhiman, you will tell me the first two. First two you are going to tell me. And Abhinur, you are not going to help him out. You read yours. अपना खुद का पढ़ो, ठीक है? Abhiman, you tell me the color of lemon juice turns yellow or dark pink and red in other situation, and lime water reddish brown and green, and watercolor yellow light pink. So, Nick, can you tell me the name of the indicators which are used first and second case? Each indicator give yellow color with the lemon juice and reddish brown with the lime water. Firstly, tell me lemon juice is acidic or basic? Lemon juice, the lemon acid. Lemon juice is acid. And lime water? Lime water is also acid. Lime water क्या होता है? नींबू पानी? Water is नींबू पानी? Then lemon juice क्या है? Juice. So everyone pay attention because everyone, mostly students get confused with this. Lemon juice is नींबू का juice. Lime water is चूने वाला पानी जो चूना यूज होता है. That is called lime water. And lime water is basic. ठीक है? Lime water is basic and water is what? Neutral. Water is neutral. So now tell me वो कौन सा इंडिकेटर है जो येलो रहेगा एसिड में, बेसिक को रेडिश ब्राउन का हो जाएगा और वाटर में भी वो येलो रहेगा. कौन सा इंडिकेटर है? So we have made flowers. हमने उससे आपके स्कूल का नाम भी लिखा था with that indicator. We use that indicator in the last class. Soap solution. Yes, beta? Soap solution. Soap solution was the indicator in that case or that yellow print? Even I asked each and every student to make this at your home also. Soap solution is the indicator. No, soap was not the indicator. Even I have given you hint also, beta. Yellow color. Yellow color क्या था? Yes, beta. Yellow color was बेटा कौन सा विनेगर येलो कलर का इसका येलो कलर का होता है या ट्रांसपेरेंट होता Firstly, tell me, were you present at that class? क्या आप उस क्लास में प्रेजेंट थे? You were present? Okay, you were present. Now tell me, मैंने आपको कहा था आपके घर के किचन के अंदर you get that yellow thing. और मैंने कहा था आप सबको each and every student from each section to do it at your home. आपने घर क्या नहीं किया? अगर किया होता तो you must remember that. Lime water and vinegar. आपके घर में लाइम वाटर मिल जाता है? You get it easily at your home? आपके घर में चूना यूज होता है? चूना नहीं था. अब मुझे बताओ आपके किचन में येलो कलर की चीज का क्या होती है? किचन के अंदर येलो कलर की जो सब्जी को पीला रंग देता है, हल्दी होती है. Turmeric, we use turmeric there. Turmeric is an indicator. Turmeric is indicator. Everyone note down. And now coming to the second. Why there is so
so much noise in the daffodils. Keep quiet. Let Abhiman and Abhinur to speak. Rest of the students, please be quiet. Otherwise, I will, what I'm going to do, I will ask you to leave the class then. Those who are making noise. So now, first is turmeric. First is turmeric, beta. Now, what is the second? Second कौन सा है? जो एसिड के साथ डार्क पिंक और रेड देता है, लाइम वाटर के साथ ग्रीन देता है और वाटर न्यूट्रल के साथ लाइट पिंक देता है. So again I am giving you hint here, Abhiman, that is dark. कोई फूल है ऐसा. कौन सा फूल एज ए इंडिकेटर यूज होता है बेटा? China rose. China rose. So here is China rose. Okay. So yes, beta, can you go? Sit. Abhiman, beta जाओ. अभी को. So अभी को बेटा. So next push, next row, 2 rows is for you. So remains red with acid, but with the base that is lime water turns blue, and again remain red with the water. So what it could be? Okay, I am giving you hint here also. Chances probably no. It's a litmus paper. It's a litmus. ठीक है? अब you have to tell me it is red litmus or blue litmus. ठीक है? One red litmus paper. Red litmus. That's right. So it is red litmus. Now coming to next. So it's again litmus. It turns red with the acid, remains blue with the base, and blue with the neutral solution. That is bitter. So what is that? क्या? अब इसका कौन सा लिटमस है बेटा? फोर्थ में, इन फोर्थ Blue. ब्लू लिटमस. ओके, सिट डाउन बेटा. Oh. Now from daffodil, Anmol ji. Anmol. And everyone note down this beta. Note down please. So all have worksheet. Note down these. So Anmol, daffodil. In your class there is only one Anmol, and let him speak. Okay, there is only one Anmol. Let him speak, and I am only asking. ठीक है, बाकी सब please be quiet. So Anmol beta, the last two rows are for you. So what could be the solution if it turns colorless in acidic solution, pink in basic, and colorless in neutral? So it's synthetic. I'm giving you here hint. It's a synthetic. It's a synthetic indicator. कौन सा ऐसा सिंथेटिक इंडिकेटर है जो कलरलेस होता है वैसे भी, और एसिड और न्यूट्रल में वो कलरलेस ही रहता है, लेकिन इट टर्न्स पिंक इन बेस? Do you know the answer? It's phenolphthalein. Okay, next पे जाओ. Next वाला आपको आता है lemon. Next वाला red, yellow, orange. So do you know the answer of this one? Everyone note down phenolphthalein. And the last one that turns red in acid, yellow in base, and orange in neutral. So again, it's synthetic solution or synthetic indicator. What it could be? It's the ethyl orange.
orange. Yes, it's right. Sit down, beta. Yes, it's methyl orange. Okay, so everyone note down these. और बेटा यू शुड नो, सबको पता होना चाहिए. हमने तो इसको एक्टिविटी के थ्रू भी किया है. बट इफ यू डू नॉट रिकॉल इट, इफ यू डू नॉट डू इट और रिमेंबर इट, तो बेटा इट्स योर फॉल्ट, मीन्स यू आर नॉट रिवाइजिंग इट. इसको आप रिवाइज नहीं कर रहे. ओके, आई आस्क्ड, मैंने आप सबको एक होमवर्क दिया था चाइना रोज के स्ट्रिप्स बनाने का एंड टर्मरिक की शीट बना के अपने आप जो है वही काम करने का, जो दैट वी डिड इन ड्यूरिंग द क्लास. किस किस ने वो किया है? आई वांट टू नो. रेज योर हैंड. ओके, लोटस से वन स्टूडेंट ओनली. लोटस वन स्टूडेंट. व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, सनफ्लावर्स वन स्टूडेंट. रोज नो वन, है ना, किसी ने नहीं किया. फ्रॉम डैफोडिल्स नो. सो बेटा अच्छा, लोटस से 3-4 और आ गए, ठीक है, दैट्स फाइन. बेटा लेके अब जिन्होंने किया है, बिकॉज दे डिड दिस इटसेल्फ, उन्होंने अपने आप से किया है, दे विल रिमेंबर इट. कि टर्मरिक का नाउ दे डोंट हैव टू क्रैम, उनको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा कि टर्मरिक का ये कलर हो जाता है, वो कलर हो जाता है. बिकॉज दे डिड दिस, उन्होंने टर्मरिक का एक पैच बनाया एंड उन्होंने जो सॉफ्ट सोल्यूशन जो कि बेसिक होता है उसको जब लगाया, दे नोटिस्ड इटसेल्फ कि उसका कलर चेंज हुआ. अब उन्हें याद करने की, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है. बट जिन्होंने नहीं किया, यू हैव टू क्रैम इट. ठीक है, I don't want my students to cram. That's why I asked my students to do this at home. Next class में आप सब करके लाओगे and bring it. ठीक है, उसको लेके आना है. I want to see. हर एक बच्चे के पास मुझे वो दिखा होना चाहिए. ठीक है, in the next Tuesday I want to see. Note down क्या होमवर्क है आपका. टर्मरिक पेपर बनाना है और चाइना रोज का पेपर बनाना है. And you have to bring it. Everyone. Okay, so we are done with this table. So now moving ahead with the lotus, Amrit Singh Barad. Amrit Singh Barad. So first reason and assertion question is for you, beta. Assertion: acids have a sour taste, while bases have a bitter taste. Is it true, beta? Yes, beta. Assertion is right or wrong? Acids have sour taste, मतलब एसिड, अगर कोई चीज एसिड है तो उसका खट्टा टेस्ट होगा, जो बेस होगा उसका कड़वा टेस्ट होगा. इज इट ट्रू? यस. अगर हम इमली खाते हैं वो एसिडिक है, हम लेमन जूस पीते हैं इट्स एसिडिक, खट्टा टेस्ट है. और वही आप अगर सोप गलती से थोड़ा सा भी टंग में लग जाए, वी फील इट्स बिटर, है ना. सो इट्स ट्रू. कमिंग टू रीजन, acids release hydroxide ions and bases release hydrogen ions in water. So I think मैंने आपको ये बताया था हाइड्रोजन आयन का. आई हैव टोल्ड यू, है ना, जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक. जितना कम जो हाइड्रोजन आयन होगा दैट मीन्स इट इज बेसिक. सो नाउ रीड इट, टेल मी इज इट करेक्ट और रॉन्ग. क्योंकि अभी हम हाइड्रोक्साइड में नहीं जा रहे बिकॉज इट इज टू मच फॉर यू. जस्ट गो थ्रू द बेसिस रिलीज हाइड्रोजन. नो, बेसिस डजंट. ठीक है, सो इट्स फॉल्स. दैट्स गुड बेटा, सिट डाउन. नाउ कमिंग टू अरमानदीप सिंह अटवाल. आओ बेटा, कम फास्ट फ्रॉम लोटस. Armandeep. Yes, Armandeep is present. बेटा माइक किसके पास है? एटलीस्ट यू कैन रिस्पॉन्ड. यस अरमान.
Armandeep is absent. Okay. So Arshdeep is there. Arshdeep. Yes, Arshdeep. So second reason assertion question is for you. Acids conduct electricity when dissolved in water. So is it true? Is it true? It's true, बेटा. Acid क्योंकि उनसे हाइड्रोजन आयंस निकल रहे हैं. So it is true. Reason. Acid produce hydrogen gas in water which allow flow of current. So hydrogen मैंने आपको भी बताया. This is also true. Coming to third. Now read the third assertion reason. Eating too many sweets can lead to tooth decay. Yes, Arshdeep? Yes, it's true. Reason. Bacteria in the mouth produce acids that corrode tooth enamel. Is it right? Yes, beta. Yes, beta. False. You are saying it's false. Why, बेटा? हमने तो ये किया था कि टूथ जो है डिके कैसे होता है. कोई भी चीज स्पेशली द शुगरी आइटम गेट स्टक टू योर टूथ तो क्या होगा. बैक्टीरिया विल कम, उसको खाएंगे और while doing this they will release acid और वो एसिड धीरे 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 आपका टूथ डिके करेगी. हमने किया था बेटा. So it's true. It is true. Coming to fourth. You said beta. Ashdeep. Avijot from Rose section. Avijot from Rose. Avijot from Rose section. Yes, beta. Experiment. React a common acid with a metal to observe gas production. Procedure. Small piece of magnesium ribbon into test tube. अगर हम छोटी test tube में magnesium ribbon डाल दें. Add dilute hydrochloric acid to the test tube and observe the reaction. Test the gas produced, bringing a lit match near the mouth of the test. इसमें इन्होंने क्या किया है कि ये फाइंड करने के लिए कि मेटल जो है, ओके, कोई भी मेटल की चीज अगर उसमें हम एसिड डालते हैं तो उसमें रिएक्शन होता है या नहीं होता. वी नीड टू फाइंड इट. सो क्या करेंगे हमने मैग्नीशियम रिबन जो है टेस्ट ट्यूब में डाला. ओके, सपोज दिस इज द टेस्ट ट्यूब. इसमें हमने जो है मैग्नीशियम रिबन डाल दिया. We put magnesium ribbon. First is this. Then we add dilute hydrochloric acid to the test tube. और फिर उसके बाद हमने क्या किया? We added dilute. Dilute मैंने last time आपको बताया था क्या होता है. Concentrated क्या होता है? Honey. पानी में डाल दो पतला हो जाता है. That is dilution. So ऐसे ही हमने dilute HCl मतलब इसमें पानी डाला हुआ है, इसको हमने थोड़ा गाढ़े से पतला किया हुआ है. तो dilute hydrochloric acid जो है HCl हमने इसमें डाली. अब हम रिएक्शन को ऑब्जर्व करें. ऑब्जर्व करने के साथ what we are going to do, we are going to bring a lighted matchstick यानी जलती हुई माचिस की तिल्ली, उसको यहाँ पर लेके आएंगे. ठीक है, माउथ के पास. अब हमारा क्वेश्चन आता है what gas is produced during the reaction? How can you confirm its identity? तो जब ये रिएक्शन हुआ होगा मैग्नीशियम और HCl के बीच तो कौन सी गैस निकली होगी और कैसे आप कंफर्म कर सकते हो कि वही गैस है? पहले तो ये सोचो एसिड जो है वो क्या निकालेगा? हाइड्रोजन ही निकालेगा. यस, इट विल रिलीज ओनली हाइड्रोजन. सो व्हाट वी से फर्स्ट में हम क्या कह सकते हैं? इट रिलीजेस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, ये तो हमें पता है एसिड क्या निकालेगा? हाइड्रोजन गैस. नाउ हाउ कैन वी कंफर्म इट? जैसे ही आप माचिस की तिल्ली जलती हुई लेके आओगे तो हाइड्रोजन गैस जब इसके कांटेक्ट में आएगी तो एक
पॉपअप साउंड आएगा, जैसे कुछ पटाखा हुआ है पट करके। तो दैट कंफर्म हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। तो हमें कैसे कंफर्म हुआ? पॉपअप साउंड प्रोड्यूस्ड एंड कंफर्म हाइड्रोजन गैस। इज इट क्लियर बेटा? कैसे पता चला? एसिड क्योंकि रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन रिलीज करती है, ठीक है। एंड हाउ वी कंफर्म हाइड्रोजन इज रिलीज्ड और नॉट? जब हम माचिस की तिल्ली जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उसके माउथ के पास ऐसे लेके आए, तो वो जैसे ही गैस किसके पास आई, जलती हुई माचिस के पास, उसने पॉप करके साउंड, ठीक है, तो पटाखा होता है जस्ट लाइक दैट। इज इट राइट? अंडरस्टूड? Okay. So coming to the beta second question, write the balanced chemical equation for the reaction between magnesium and hydrochloric acid. So for this, let's go the next slide. So it's B, sixth, fourth ka. You better set. You also note down because you also go and set. Note down. Everyone note down this. सबने लिखना है. Everyone, pay attention to this. ठीक है? So now. मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg. ओके, मैग्नीशियम इज Mg. हाइड्रोक्लोरिक HCl. L इज स्मॉल बट C इज कैपिटल, ठीक है. HCl, when they react, what they form? They form magnesium chloride. अब ये क्लोराइड कहाँ आ गया? इधर, ठीक है. इस और इसके आगे दो लिख लो बेटा. मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस एज वी से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, निकलती है. तो इट इज हाइड्रोजन गैस दैट इज लिबरेटेड और रिलीज्ड. इज इट फाइन? सबने लिख लिया? कमिंग टू द सी पार्ट ऑफ दिस. सी पार्ट क्या है? व्हाई वी शुड नॉट स्टोर एसिडिक सब्सटेंस इन मेटल कंटेनर. और मेटल जो भी है ऑब्जेक्ट, उसमें क्यों नहीं रखना चाहिए? Why we should not store pickles in metal containers? क्यों नहीं रखे हम मोस्टली जो अचार है किस में रखते हैं? ग्लास के जार में रख दिया, ठीक है, ऐसे रखते हैं ना. So why we are not storing it in a metal containers? What is the reason? अचार कैसा होता है? Is it acidic or basic? ये तो सब म्यूट पे अभी, क्योंकि अगर अनम्यूट कर दूं तो सबकी आवाज बहुत ज्यादा आती है. So let me call from the rows Avneet Kaur. Avneet Kaur from the rows. Yes, beta. So, beta, the question is why we should not store acidic substances in metallic container. रखे हम. क्योंकि वो मेटल एसिड से रिएक्ट करता है. Yes, that's right. अब मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था, pickles are acidic or basic? Acidic, and that's why we should not store pickles in metallic containers. So that's right. Sit down, beta. That's good. So yes, so we should not store because acid reacts with matter and thus corrode metals. ठीक है, that's the reason. Now D, which of the following best describe the experiment's outcome? तो एक्सपेरिमेंट का आउटकम मतलब रिजल्ट, कौन बेस्ट दिखाता है? ए पंजेंट स्मेल गैस इज रिलीव. पंजेंट हो गया जैसे कि यू कैन से लाइक सड़ा हुआ अंडा टाइप स्मेल, ठीक है. नो रिएक्शन टेक प्लेस, नहीं ऐसा तो कुछ हुआ नहीं. एफरवेसेंस अकर्स एंड द गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड. एंड डी, सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू. तो एफरवेसेंस क्या होता है बेटा? जब वो आपस में जो एसिड है या कोई भी चीज, हमने कोई सॉल्यूशन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एंड वी आर मिक्सिंग टू थिंग्स टुगेदर एंड व्हाट दे आर डूइंग, झाग आ रही है, जैसे रिएक्ट कर रहे झाग से निकल रही है,
इवन यू कैन सी लिसन टू द साउंड ऑल्सो, थोड़ा सा ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह निकालते हो ना, सोडा निकालते हो तो वो झाग सी आती है और हल्का हल्का जो साउंड आता है, जस्ट लाइक दैट, दैट इज एफरवेसेंस। ठीक है, तो effervescence occurs and the gas burns with a pop sound, तो pop sound तो आया ही है इसमें, so that confirms the presence of hydrogen gas, so answer is D का C। ठीक है, so that is what। now coming to the fifth question। ठीक है, is it done? note down कर लिया सबने? you should note down in your worksheet बेटा, note down these things। done। now who can tell me about acid rains? who can tell me about acid rains? ये चैप्टर हो चुका है ना? इज दिस चैप्टर कंप्लीटेड इन योर क्लास? यस और नो? रेज योर हैंड इफ इट्स डन। It's not done yet? Okay, in lotus it's done. What about other section? Okay, it's done in sunflower. Daffodil, is it done? Okay, it's going on. It's going on, beta. In daffodils. Okay, so आपने ये acid rain concept पढ़ लिया? Is it done in your class? Acid rains? No. And in rose section, yes? Is it done, beta? No. Okay, so दो section में हो चुका है, दो में नहीं हुआ। Okay, so lotus और sunflower, who can tell me about acid rains? In sunflower and lotus it is done. What is acid rain? It's a very common thing, even in news it comes beta। acid rain क्या होती है? खुद इन दोनों वर्ड को जरा तोड़ के देखो, एक एसिड आ रहा है, एक रेन आ रहा है ना? अब जब इनको कंबाइन कर दिया तो वी आर सेइंग इट्स एसिड रेन। रेन तो हो रही है, नाउ डेज रेनी सीजन इज गोइंग ऑन, है ना, बारिशें हो रही है, लेकिन अगर वो जो पानी ऊपर से आ रहा है इट बिकम्स एसिडिक, सो व्हाट वी कॉल इट? एसिड रेन और नॉट? नोड योर हेड, यस और नो? ऐसे तो कर ही सकते हो, है ना? नाउ लोटस, बस बेटा उतना ही, ज्यादा नहीं। यस सनफ्लावर, अगर जो रेन वाटर है इट बिकम्स एसिडिक, सो कैन वी कॉल इट एसिड रेन? यस, कैन वी कॉल इट? यस। व्हाट अबाउट रोज, कैन वी कॉल इट एसिड रेन? यस। डैफोडिल्स, कैन वी कॉल इट एसिड रेन? यस। सो एसिड रेन क्या है? when rainwater becomes acidic, अब ये नहीं कि आपको जला देगा, हाथ जल जाएगा, नो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, इतनी जल्दी नहीं होता, इतना एसिडिक नहीं होता। बट जो अगर हम नॉर्मल वाटर की बात करें वो न्यूट्रल होता है, दैट इज नॉट एसिडिक नॉट बेसिक, ठीक है, नॉर्मल। बट जब उसमें जो हम व्हीकल्स चलाते हैं, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, वी आर कटिंग डाउन ट्रीज, ओके, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें गैसेस इकट्ठी हो रही है, पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, वो इकट्ठे हो रहे हैं। व्हाट दे आर कॉजिंग, क्या कर रहे हैं वो, क्या कर रहे हैं बेटा? ऊपर जाके इकट्ठा हो रहे हैं। एंड व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है वो पानी अपने साथ उनको नीचे लेके आता है। बट व्हाइल डूइंग सो, वो करते टाइम पानी, वाटर कैन रिएक्ट विथ दोज गैसेस, जो गैसेस है उनसे रिएक्ट कर सकता है, और जब वो उनके साथ रिएक्ट करता है तो जो बनता है द प्रोडक्ट, वो क्या होता है? एसिडिक होता है। अब वो एसिडिक प्रोडक्ट ऊपर तो नहीं रहेगा बिकॉज रेन इज कमिंग डाउन, है ना, पानी तो नीचे ही आएगा ऑब्वियसली, है ना, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो क्या होगा, वो एसिडिक वाटर हमारे जो चीजें हैं उनको धीरे धीरे खराब कर सकता है। कौन सी चीजें? प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स को एसिडिक वाटर नहीं चाहिए। सॉइल, ताजमहल की स्टोरी आपने सुनी होगी,
एसिड रेन से लिंक, सुनिए किस किसने सुना हुआ है, रेज योर हैंड। एसिड रेन एंड देयर इज लिंकेज बिटवीन ताजमहल, 7 वंडर में आता है, ताजमहल आगरा में है। सो ताजमहल इट वॉज टोटली वाइट, पहले पूरा सफेद था, लेकिन एसिड रेन के कारण वहां पर जो बारिश, क्योंकि साथ में एक फैक्ट्री हुआ करती थी, है ना, तो उसकी वजह से धुएं के कारण जब भी बारिश होती थी तो क्या होता था, एसिड रेन और एसिडिक वाटर उस पे गिरता था। तो जो ताजमहल है उसका जो कलर है, मार्बल का कलर, वो थोड़ा फेड हो गया। तो गवर्नमेंट ने नोटिस किया एंड दे बैन दैट इंडस्ट्री, ठीक है, उस इंडस्ट्री को उन्होंने बैन कर दिया। अब वहां पर आसपास आई थिंक 5 किलोमीटर तक कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है, ताकि ताजमहल खराब ना हो सके। तो एसिड रेन जो है, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स नेचर इज एसिडिक, कुछ ना कुछ तो नुकसान करेगा, बट कब करेगा, जब बार बार वो चीज होएगी। ओके, सो दैट्स द रीजन। सो एसिडिक रेन पे अब मैंने जो आपको ये पूरी स्टोरी सुनाई है, व्हाई इट इज, बिकॉज इट इज लिंक टू योर क्वेश्चन नंबर 5। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इट इज लिंक्ड विद दिस एसिड रेन स्टोरी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you try to solve this question number 5 itself, okay? तो इसमें देखो गैसेस का नाम दे रखा है, इट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन ऑलरेडी, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोक्साइड्स, ठीक है। एंड व्हेन दीज गैसेस रिएक्ट विद वाटर दे मेक वाटर एसिडिक, और उस रेन वाटर को, और वो जो होता है उसको वी कॉल इट एसिड रेन, ठीक है। So try to solve this question number 5 itself, and then in the next class we are going to cover module 3, ठीक है। So now your math class is going to start, beta, okay? So bye students, take care. तो पता चल चुका, रेक्टेंगल के बारे में पता चल गया है, ट्रायंगल के बारे में पता चल गया है। नाउ यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। या लोटस सेक्शन बेटा, दिलराज सिंह, थोड़ा सा मेरे को हिंट दो बेटे, आगे आके क्या कर सकते हो। दिलराज प्लीज कम फॉरवर्ड। हाँ जी आ जाओ। व्हेन आई विल कॉल अ चाइल्ड ना, बाकी बच्चे हंसेंगे नहीं। But he is absent. ओके, यू कैन टेल मी बेटा, यू नो। ओके, I must clap for him that he has come. He is brave enough to tell me कि he is absent. माइक के पास आके बोलना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। हाँ जी बेटे, कैन यू टेल मी क्या ये एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट क्या होगा? Stop laughing. Other children will not laugh. Next time again I will call from Lotus section. Be ready, everybody. आपके पास एक यहाँ पे रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है, ठीक है। आपको रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकालना। रिमेनिंग पार्ट का मतलब क्या है कि ये जो बचा हुआ शेप है, डॉट्स जिसके ऊपर लगाए गए हैं, उसका हमने एरिया निकालना। क्या आप बता सकते हो कौन से एरिया में से क्या माइनस करेंगे? ओके, बैठो फिर, सिट डाउन, नो प्रॉब्लम, आई एम टेलिंग यू, सिट डाउन। राइट डाउन एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ, ये पूरा बेटा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। तो प्लीज राइट डाउन इन द नोटबुक। एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल को आप शॉर्ट के साइन से भी बना सकते हो, अपने नोट्स बना रहे हो, आप अपनी नॉलेज के लिए लिख रहे हो। आपको फिगर से क्लियर हो रहा है कि रेक्टेंगल में से अगर हम ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो वी विल गेट अ एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो सबको पता ही है, लेंथ इनटू ब्रेड, आपने किया हुआ ऑलरेडी। तो यहाँ पे लेंथ हमारे पास x है और ब्रेड हमारे पास y है, ओके। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा? इट इज हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। पहले फॉर्मूला लिख लो ताकि आप कोई गलती ना हो।
आपको पता चले कि आप बेस की जगह क्या ले रहे हैं, हाइट की जगह क्या ले रहे हैं। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 1/2। ट्राइंगल में बेस क्या है बेटा? व्हाट इज द बेस? जिनको लगता है कि वाई है हाथ खड़ा करो। बेस इज वाई, वेरी गुड, राइट डाउन। हाइट इज जेड, अभी अभी हमने यहाँ पे साइड पे भी लिखा था। ओके, सो वी आर टेकिंग एक्स वाई माइनस हाफ ऑफ वाई जेड। अभी मैच करो जरा ये ऑप्शन से, कौन सी ऑप्शन से मैच कर रहे हैं आपका? इट इज बी ऑप्शन। आपको क्लियरली दिख रहा है ना यहाँ पे? इसी फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स वाई माइनस हाफ ऑफ वाई जेड। ऑप्शन इज बी। ओके, these are very very important question. You are in 7th class, ये थोड़ी कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। ओके, यू ऑल्सो राइट डाउन इम्पोर्टेंट। बेटा जो भी आप नोटबुक में लिखोगे प्लीज उनको नीटली नीटली लिखो, सो दैट बाद में आप रिवाइज भी कर पाओ यहाँ से। ओके, ये नहीं कि अभी तो रफ कॉपी में कुछ कुछ लिख रहे हो, बाद में जब तैयारी करनी होगी एग्जाम की तब आपको कंफ्यूजन हो जाएगी अभी कहाँ से तैयारी करें। ओके, यू अंडरस्टैंड नाउ ऑल्सो, सो दैट यू कैन रिवाइज फ्रॉम योर ओन राइटिंग। आपको राइटिंग अपनी समझ आनी चाहिए बाद में। ओके, दिस वाज डिफरेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा मुश्किल भी था। ओके, सो you can note down, just revise at home once more. Okay, third question. Third question is also very important. This is also important. Before doing the third question, I want to write down note in your notebook. Degree of a polynomial. Degree of a polynomial. कोई भी पॉलिनोमियल है आपके पास, उसकी डिग्री क्या होती है? रेज योर हैंड, किसी को पता है? कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होती है? अगर आपको नहीं पता देन सी हियर, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब है is equal to highest power of a variable. कोई भी आप जो भी पॉलिनोमियल लिखते हो, ये इंपॉर्टेंट है, नोट की फॉर्म में इसको लिखो, आप क्वेश्चंस में यूज करोगे। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, जब भी आप किसी डिग्री की बात करते हो इसका मतलब आप इसको डिग्री भी बोल सकते हो, इसको पावर भी बोल सकते हो। डिग्री और पावर, और करके इसको पावर भी लिख सकते हो। ओके, यू शुड नो कि किसी बुक में आप पावर पढ़ोगे, किसी बुक में आप डिग्री पढ़ोगे, एक ही बात होती है वो। ओके, दिस इज न्यू थिंग फॉर यू, प्लीज नोट इट डाउन। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। सपोज कर लो कोई एग्जांपल लेते हैं हम इसका, राइट डाउन 5x² माइनस 7x+1। इसकी डिग्री क्या होगी? ये पॉलिनोमियल है, आपको पता है लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है। पॉलिनोमियल में हमारी सारी की सारी पावर जो होती है वो पॉजिटिव होती है, नेचुरल नंबर्स होते हैं। ओके, जीरो को इंक्लूड करके, जीरो भी हो सकती है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, उसको हम एक पॉलिनोमियल का नाम दे देते हैं। ओके, तो इसमें डिग्री क्या होगी? जिनको दिख रहे हैं कि 2 होगी पावर, इसकी पावर 2 है या फिर डिग्री 2 है, हाथ खड़ा करो। सबसे ज्यादा पावर किसकी दिख रही है? वेरी गुड, वेरी गुड। रो सेक्शन इज वेरी वेरी अटेंटिव, लोटस सेक्शन ऑल्सो क्विकली रिस्पॉन्स आता है मेरे को। द मोमेंट आई आस्क फटाफट से आपके हाथ खड़े हो जाते हैं। सो वंडरफुल, सनफ्लावर ऑल्सो, वेरी नाइस, यू आर ऑल वेरी ब्यूटीफुल चिल्ड्रन। प्लीज हैंड्स डाउन, वेरी गुड, हैंड्स डाउन। डिग्री इज इक्वल टू 2। Okay, one more I'm writing over here, 5xy minus 7x+1। अब इसकी डिग्री क्या होगी? अब आप कहोगे कि ये तो वेरिएबल चेंज हो गया, किसी के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ।
ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में आपने 1 अपने आप लिख लेना है। जिनके ऊपर कुछ नहीं होता ना, ये 1 अपने आप लिख लो इनके ऊपर। 1 1 1। शुरुआत में थोड़े क्वेश्चंस में 1 1 लिख लो, फिर आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, फिर ये चीजें अंडरस्टूड हो जाएंगी कि यस वी नो इट कि इसके ऊपर 1। ओके, तो ये अब इसकी डिग्री क्या होगी, ये तो सारे ही 1 1 है। इस केस में आप क्या करोगे, इनकी पावर्स को आप प्लस करोगे, ऐड पावर्स, इनकी पावर्स को आप ऐड करोगे, इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2। जब आपके पास दो वेरिएबल हो अलग अलग, उनके पावर्स को हमने प्लस कर लेना है। प्लस करके वी केम टू नो कि यहाँ पे तो मैक्सिमम पावर है 2, तो इसलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आ जाएगी 2। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक और एग्जांपल मैं लिख रही हूँ, दिस वाज फर्स्ट एग्जांपल, दिस वाज सेकंड। एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 5x 3y - 7xy + 1। आई एम टेकिंग द सिमिलर एग्जांपल्स ताकि आपको डिफरेंस पता चले इनमें। जल्दी से इसकी डिग्री बता दो मेरे को सोच के। अप्लाई द सेम थिंग, मैंने आपको बता दिया है क्या होता है वो। वेरी गुड। किसी को डाउट हो रहा है खड़े होकर पूछ लो, और जिनको पता चल चुका है कि इसकी डिग्री 4 है, रेज योर हैंड। डिग्री 4। लोटस सेक्शन, वंडरफुल। यस, सनफ्लावर, वेरी गुड वेरी गुड। रोज सेक्शन, वेरी नाइस। डैफोडिल, वेरी नाइस। बेटा बिना बात तो नहीं हाथ खड़ा कर रहे ना, यू नो इन रियल, एक्चुअली आपको पता है ना, देन इट इज फाइन। वेरी गुड, हैंड्स डाउन। यू नो हियर वी आर एडिंग, यहाँ पे 1 1 1 लिख दो। इसकी पावर आपको दिख रही है 4 है, इसकी पावर आपको दिख रही है 2 है, तो मैक्सिमम इज 4, सो डिग्री विल बी 4। ओके, जब वेरिएबल हमारा डिफरेंट है वी ऐड द पावर्स। आफ्टर राइटिंग दिस, थर्ड क्वेश्चन का आंसर मेरे को जल्दी से बता दो सोच के। प्लीज रीड इट योरसेल्फ। थर्ड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, जो चीज अभी हमने लिखी है यहाँ पे। वेरी गुड। पॉलिनोमियल इज गिवन टू यू, इनके वेरिएबल्स दिए हुए हैं ए बी, A4 B4, देन A2 B2, देन ABC। सबके ऊपर पहले तो 1 1 लगा दो अपने मॉड्यूल में, जहां आपको दिख रहा है कि सिंगल सिंगल वेरिएबल है ABC, सबके ऊपर 1 1 1 खुद लगा दो ताकि आप पावर्स को ऐड कर पाओ। देन यू हैव टू राइट देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर, इसका मतलब है कि आपको जो ये थर्ड क्वेश्चन अभी हम यहाँ पे करेंगे क्योंकि कई बच्चे अभी नोट कर रहे हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स, ठीक है। पावर्स को राइट पावर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट पावर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको अगर इजी वे में लिखना है, यू कैन राइट इट डाउन इन द मॉड्यूल कि हमने पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। उसके अकॉर्डिंगली यू कैन सी कि कौन सा नंबर पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। प्लीज सी द आंसर्स वेरी केयरफुली। अभी अभी आपको पता चल चुका है, सब बच्चों ने हाथ खड़े किए थे। वेरी गुड, जल्दी से आंसर देखो बेटा। टेल मी, डिसेंडिंग ऑर्डर, बिग टू स्मॉल, आपको पावर्स को बिग टू स्मॉल ऑर्डर में लिखना है। जल्दी से चेक कर लो, जिनको लगता है कि ए आंसर है हाथ खड़ा करो। नो, बी, बी आंसर। क्या बी डिसेंडिंग ऑर्डर में है? नो, एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया है, प्लीज इसको रिवाइज करो दोबारा। बी इज नॉट द आंसर। सी आंसर है, क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है? डी आंसर है, हाथ खड़ा करो जिनको पता है कि डी इज द आंसर, डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर्स उनकी। यस, कुछ हाथ मेरे को दिख रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वंडरफुल। सो डी इज द आंसर। डी में आपको दिख रहा है कि सारी की सारी पावर्स हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। पहले 4 पावर है, फिर 2 पावर है, फिर 3 पावर है। एबीसी की पावर 3 होगी ना, 1 + 1 + 1।
एंड देन हमारे पास 2 पावर। सो डी इज द करेक्ट आंसर थर्ड क्वेश्चन में, जिसमें हमारी सारी की सारी पावर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है। ओके बेटा, योर एमसीक्यू इज ओवर, 3 क्वेश्चंस ही थे। डू यू हैव मॉड्यूल 2 आल्सो? मॉड्यूल 2 है तो निकाल लो बेटा, वेरी गुड। मॉड्यूल 2 में ओके, टेक इट आउट, आई एम वेटिंग फॉर यू। आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ रहा है? The children who will understand now in 7th class, they will of course will be doing in 8th, 9th, 10th, 11th, ये सारी चीजें आपकी बिग बिग क्लासेस में यूज होने वाली है। ओके, सेकंड मॉड्यूल अपने सामने रखो, नोटबुक में लिखो मॉड्यूल 2, बिकॉज उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिखने वाले हो, नोट लिखने वाले हो, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो। राइट डाउन द हेडिंग मॉड्यूल 2। Okay. Module 2, we are going to do assertion reason. First is number of terms in the expression is 4. चेक करो जरा, क्या इसमें 4 नंबर ऑफ टर्म्स है? हमारे पास एक्सप्रेशन है 3x² y minus 2y square z minus 2x² y plus 5. You can note down this in your notebook also. क्योंकि पेपर में जो लिखा होता है ना बेटा, चाहे वो एग्जाम की शीट हो चाहे फिर अभी मॉड्यूल की शीट हो, थोड़ा पास पास लिखे होते हैं लेटर्स, आपको पता है? ठीक है, अपनी नोटबुक में उसको दूर दूर करके लिखो नाइसली, आपको पता चले कि कहाँ पे साइन है और कहाँ पे नंबर है। वेरी गुड। इफ यू वांट टू स्कोर गुड इन मैथमेटिक्स, डोंट स्टॉप मूविंग योर पेन। पेन आपको कंटिन्यूस चलते रहना चाहिए। वेरी गुड। जो बच्चे पेन चलाने से नहीं थकते वो लोग कभी हार नहीं सकते। वेरी नाइस। नाउ नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन, कितनी टर्म्स है इसमें? काउंट इट। 1 2 3 4। 4 किस किस को दिख रही है? हाथ खड़ा करो। ओके ओके, हैंड्स डाउन। अभी थोड़ा और ध्यान से देखो इसको, थोड़ा और ध्यान से देखो। कैन यू सी x² y एंड x² y, दे आर लाइक? अभी अभी हमने लाइक टर्म्स किया था, दे आर लाइक। तो लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा लिखेंगे। वी हैव टू राइट लाइक दिस, 3x² y minus 2x² y minus 2y² z plus 5। लाइक टर्म्स को हमने इकट्ठा लिख दिया है, पास पास लिख दिया। Now we have to solve it. 3 minus 2 is 1. So 1x² y minus 2y² z plus 5. This is the actually expression. This is the actual polynomial. You have learned so many things about algebraic expression. Question में आपको confuse किया जाता है. You have to use your own brain. आपको अपनी इंटेलिजेंस लगा के खुद बताना है कि नहीं, ये 2 टर्म्स हमारी लाइक हैं, इसलिए वो 2 नहीं है, वो एक ही है एक्चुअली। उनको हमने इकट्ठा किया, चाहे प्लस का साइन है तो प्लस करो, माइनस का साइन है तो माइनस करो। नाउ काउंट करो, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 1 2 3। देयर आर 3 टर्म्स एक्चुअली। ओके, तो असर्शन क्या होगा हमारा? असर्शन विल बी फॉल्स। अब इसको लिखने से नहीं घबराना, प्लीज राइट डाउन, लिख लो ये, इसको 2 लाइनें लिख लो अपनी नोटबुक में, आपने बाद में रिवाइज करना है इसको। वेरी गुड। आई हैव सीन गुड चिल्ड्रन, अच्छे बच्चे जो होते हैं उनको भी कई बार ये मिस हो जाता है देखना कि वो लाइक है। ठीक है, लाइक टर्म्स को हमें खुद ढूंढना पड़ता है, डीपली ध्यान से उसको देख के कि कहीं कोई लाइक तो नहीं है। इतनी बड़ी एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इतनी बड़ी एक्सप्रेशन में कहीं कोई लाइक तो नहीं है। लाइक है तो उनको हम कंबाइन करेंगे अपने आप, इतनी बड़ी एक्सप्रेशन को छोटा बनाएंगे। ओके, सो असर्शन इज फॉल्स।
reason, the number of terms of any expression is the number of unlike terms. तो क्या ये ट्रू है? अनलाइक टर्म्स, इसमें आप देख रहे हो कि क्या इसमें अनलाइक टर्म्स है? ये 3 की 3 जो थी वो अनलाइक टर्म्स थी, पता है ना आपको? तभी तो हमने इसको काउंट किया 1 2 3। ठीक है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास एक पॉलिनोमियल लिखी होगी, पॉलिनोमियल में ऑल टर्म शुड बी अनलाइक, कोई किसी से मिलर नहीं होना चाहिए, सिमिलर नहीं होना चाहिए। अगर वो सेम होगा तो आपने उसको अलग अलग काउंट नहीं करना, कंबाइन करके उसको एक मानना है। ओके बेटा, सो दिस इज अनलाइक टर्म, सो रीजन इज ट्रू कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती हैं? अनलाइक टर्म्स होती हैं, तभी हम उसको काउंट करते हैं। ओके, सो हमारी ऑप्शन इसमें हो जाएगी डी ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन, assertion 3xy plus y square x plus xy is a binomial। क्या ये बाइनोमियल है? बाइनोमियल क्या होती है? व्हाट इज बाइनोमियल? हाथ खड़ा करो, बताया था मैंने प्रीवियस क्लास में। वेरी गुड वेरी गुड, लोटस सेक्शन, वंडरफुल। वो विंडो के साथ जो एक बॉय बैठा है वॉल के साथ, वेरी गुड, आ जाओ बेटा, जल्दी से आ जाओ। यस प्लीज टेल मी व्हाट इज बाइनोमियल। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ, यस, टेल मी योर नेम आल्सो फर्स्ट। बाइनोमियल भी बता दो और इसका आंसर भी बता दो, वेरी गुड। बाइनोमियल, यस बेटा, बाइनोमियल क्या होती है? बाइनोमियल क्या होती है पहले ये बताओ। that has two terms एज टू टर्म्स, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन है हमारे सेकंड क्वेश्चन में 3xy प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई। ध्यान से इनको देखो, ध्यान से इनको देखो कि 2 है या 3 है? 3 है, तो 3 क्या वो अनलाइक है? तीनों अनलाइक है क्या? तो ये देखो, एक एक्स वाई क्या वो दिख रहे हैं एक जैसे? यस, तो उनको कंबाइन करना है, 3 + 1 = 4, तो वी कैन से 4xy प्लस वाई स्क्वायर एक्स। अब बताओ क्या ये बाइनोमियल है? यस, वेरी गुड, सिट डाउन। हमें बहुत ध्यान से देखना है। आई टोल्ड यू, एक पॉलिनोमियल के अंदर सारी की सारी टर्म्स अनलाइक होनी चाहिए। अगर वो लाइक है तो उसको कंबाइन करो, खुद ऐड करो, खुद उसको सब्ट्रैक्ट करो। ओके, सो दैट विल बी योर असर्शन विल बी ट्रू कि ये यस ये बाइनोमियल है। आपने बहुत ध्यान से उसको खुद देखा, ऑब्जर्व करके आपने बताया कि यस दिस इज ट्रू। ओके गुड बेटा। नेक्स्ट वन, इसका रीजन, एक्सप्रेशन विथ 3 अनलाइक टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल किसको बोलते हैं? इसकी 3 टर्म्स होती हैं। यस दिस इज ट्रू, ठीक है, दोनों ट्रू हैं, तो इसकी ऑप्शन हो जाएगी बी। सेकेंड क्वेश्चन की ऑप्शन बी आएगी, बोथ आर ट्रू। ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स। ओके, आपने प्रूव कर दिया कि वो 3 दिखने में तो 3 है, लेकिन उनमें से 2 लाइक है जिनको हमने कंबाइन करके 1 बना दिया। ओके, थर्ड क्वेश्चन बेटा, आई होप यू हैव नोटेड दिस। थर्ड क्वेश्चन इज assertion they are like terms। क्या वो लाइक है? ध्यान से इनको देखो, 3a² b - 5a² b। मुंह से बोला करो, लिपसिंग किया करो। यू नो, जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज सबको सुननी चाहिए, आई एम स्पीकिंग लाउडली, बट आपको आपके माइंड में आपको बोलना है। मैथ्स में जब भी आप काम करते हो प्लीज डू लिपसिंग, बोल बोल के लिखो, -a² b प्लस a² b, लिपसिंग करो क्वाइटली, क्योंकि जो आप बोल रहे हो
वही आप नोटबुक में लिख रहे हो। और सेकेंड एडवांटेज इज जब आप मुंह से बोलते हो आपकी कॉन्सेंट्रेशन इज फुली ऑन द नंबर, फुली ऑन योर क्वेश्चन। ओके बेटा, सो टेल मी आर दे लाइक टर्म्स? हाथ खड़े करो इफ यस। यस, वंडरफुल। यू नो दोनों की पावर सेम है, हमने सिर्फ वेरिएबल्स को देखा, उनकी पावर्स को देखा, दैट्स इट। बाकी हमें कुछ नहीं लेना देना। Yes, good beta. Reason: the terms having same algebraic factors are called like terms. Yes, this is also true. This is also true. इनको हम algebraic factors बोलते हैं, पता है? They are called algebraic factors. Note down कर लो। एक तो factors होते हैं numbers वाले 5, 7, 1, 2. Algebraic factors किनको बोलते हैं? जो variables होते हैं। A into A is A square. B into B is B square. They are called algebraic factors. अपनी knowledge के लिए लिखो। Fine. So this is also third part है हमारा. This is both are true, both are related also. It is A option. Please इनको revise करना. Most important topic है आपका. Fourth question is the value of algebraic expression is -1. Fourth question. The value of algebraic expression. Value इनकी लिखो पहले algebraic expression क्या है? A square plus B square plus 3AB. सब लोग नोटबुक में लिखो इसको। A is equal to आपने 1 पुट करना है, B is equal to 2 पुट करना है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दी हुई है। अब आप सोचोगे कि इसको पॉलिनोमियल क्यों नहीं बोला? किसको पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। हो सकता है आपको कभी क्वेश्चन ट्विस्ट करके आ जाए, आस्क की पॉलिनोमियल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 3AB। ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, वो कह रहे हैं कि पूरी की पूरी ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू है -1। अगर आप A की जगह 1 डालते हो और B की जगह 2 डालते हो। लेट अस सी, आई डोंट नो, वी हैव टू चेक इट। ठीक है, A की जगह 1 डालो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 इंटू 2। 3AB का मतलब क्या है? 3 इंटू A इंटू B। दूर दूर लिखो, मैथ्स की अपनी राइटिंग अच्छी करो, साइन क्लियरली दिखना चाहिए, एक एक फिंगर पे एक एक आपका गैप पे होना चाहिए नंबर साइन। फोकस ऑन योर राइटिंग। ठीक है, राइटिंग अच्छी करो, मुंह से बोलो, ताकि आपकी पूरी की पूरी कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन के अंदर जाए। ओके, लेट अस सी -1 आता है कि नहीं, चेक करना जरा। माइनस साइन हमें तो यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है, माइनस का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि यहाँ पे माइनस आ जाए, है ना? क्या ये -1 आ सकता है? नो, इट कैन नॉट बी इक्वल टू -1। हो ही नहीं सकता, सारे पॉजिटिव है, 11 आंसर आ रहा है। सो दिस इज फॉल्स। असर्शन हमारा फॉल्स होगा। assertion is false. किसी का आ रहा है -1 तो बता दो मेरे को। एनीबडी हु फाउंड? नहीं, सबको पता है कि जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन तो आ ही नहीं रहा बिल्कुल। नो, नो वे कि वो नेगेटिव आए। रीजन: टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई। यही तो किया है हमने। हमने यहीं पे ये किया ना कि वेरिएबल्स की वैल्यू हमने डाल दी, सब्स्टिट्यूट कर दी एक्सप्रेशन के अंदर और उसको सिंप्लीफाई कर दिया, सॉल्व कर दिया हमने, राइट? सो इज इट ट्रू? यस, यू हैव गॉट डी ऑप्शन, क्योंकि असर्शन हमारे पास फॉल्स आ गया था। ओके बेटा, असर्शन रीजन सारे किसको समझ आ गए? एक बार हाथ खड़ा करो। If you understand assertion reason, na beta, it means you have understood the whole chapter. I'm telling you. Very good, wonderful, very good. Hands down, hands down. जिन बच्चों को assertion reason अच्छे से समझ आ जाते हैं, it means you have understood the whole chapter. ठीक है, जितनी भी नॉलेज आपकी चैप्टर के अंदर थी वो सारी की सारी सेंटेंसेस फॉर्म में, एग्जाम्पल फॉर्म में आपके assertion reason में लिखी हुई है। ओके, यू आर रीडिंग एंड टेलिंग कि ट्रू, फॉल्स, यस, नो, व्हाटएवर, क्योंकि आपको चैप्टर की नॉलेज हो चुकी है।
ओके बेटा, योर टाइम इज अप नाउ। एमसीक्यू हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को आते होंगे ये एमसीक्यू कि हाँ ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं, प्लीज ट्राई एट होम। ओके, एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना घर पे। ओके बेटा, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।